Now, the second type of environment, which is again important to understand from the company's point of view, is the political scenario, the political environment. See, in any nation, the political parties differ. They differ in terms of their policy making, their objectives, their roles, because that depends on the kind of economy. If we talk about the American economy, so they are capitalist and the role of the government is different there. If we talk about China, so that is communist and the role of the government is again different. If we talk about India, so we have a mixed kind of economy and the political uh, scenario means the government, the structure of the government that encompasses the features of both, like the communist as well as the socialist, right? So this is the thing. Okay, when you enter in any nation, you need to understand that what is the political scenario, how many parties are there, who is the party in opposition, who is the party in Good power. morning, sir. Good morning, Hina. Right? So that you can make your policies accordingly. तो बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यही बता रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं. It is defined as the state government institution and laws together with the public and private stakeholders who operate and influence that system. What are the different kinds of laws which are made by the government, the policy making of the government, and both the government, I am talking about the state government as well as the central government. Sometimes the state policies may differ, but altogether they are a part of the central government. And even sometimes the states are also forced to follow the guidelines which are given by the central government. Just like in India also, if the central government has decided something, so it is mandatory for the states to follow that. Right. So this is basically the political environment, political scenario. Second, you can understand the business managers will pay attention to the political environment to see how government action will influence their company. See, it's a continuous process. The government, as a part of running the economy, can take the decisions uh, on daily basis, or you can say in daily routine, and you have to analyze that decision in that respect, that how it influences you and your company. Means, like, if any decision is being taken by the government, so what is that decision, first thing, and second, what kind of impact that decision may have on your company, first thing, the stakeholders whosoever have joined your company, and thirdly on your market. Because ultimately कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली चेक करना होता है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट कर रहा है. एक छोटा सा, बहुत छोटा एग्जांपल यहाँ ऐसे समझ लीजिए. मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ा दिए, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी और घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में अगर उन्होंने पर यूनिट 50 पैसे भी बढ़ाए, ठीक है, और आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो कमर्शियल आप कमर्शियल वाले स्लैब में आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और एक दिन में अगर आप मान लीजिए 100 यूनिट भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और 7 रुपए यूनिट पहले थी और अब 7.5 रुपए पर यूनिट है, तो आपके ऊपर देखिए कितना अफेक्ट पड़ेगा कि आप मंथली जब उसका खर्चा निकालेंगे तो वो हजारों रुपए में आएगा. तो गवर्नमेंट कहीं भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक डिसीजन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे डायरेक्टली पड़ा. अब आपको सारी चीजें मैनेज करनी होंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बढ़ा हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग पे प्रभाव डालेगा, वो आपके एमआरपी को अफेक्ट करेगा, वो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप का जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था वो अब कम हो जाएगा. तो सारी चीजें बेसिकली अफेक्ट डालती हैं. तो मैनेजर्स का ये काम है कंटिन्यूअस अटेंशन देते रहें जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको, उनके डिसीजंस को, और एनालाइज करते रहें कि किस तरीके से वो चीजें अफेक्ट कर रही हैं आपके बिजनेस को.
Political environment also include the political culture, which are views held about what government should act with relation to its citizens. Basically, हर एक political government, political environment में है क्या? Political parties हैं, and every political party has certain value system, has certain beliefs, has certain uh, culture, you can say, because that party also itself have some kind of mode of doing the you know this power game. So as you can say, अभी आपने मुंबई में देखा, ठीक है, ठाकरे गवर्नमेंट का आपने देखा, कंगना रनौत के साथ केस था, तो दैट इज अ डिफरेंट सीन। ठीक है, वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो पॉलिटिकल उसका पार्ट है, गिमिक का, वो वहाँ का कल्चर है, that they favor only the Maharashtrian who are a part of that Mumbai and Maharashtra. So anyone who has joined or anyone who has came from outside Maharashtra will not be treated in the same way as the localites, right? So that is their scenario, that is their perspective as a political government. So it differs from state wise, ये differ करेगा, ये सेंट्रल बॉडी में देखें तो डिफर करेगा। अगर आप ऑल टुगेदर इंडियन गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी की सरकार है तो उसकी क्या पॉलिसी मेकिंग है, कांग्रेस रही तो उसका क्या था स्ट्रक्चर, तो बेसिकली वो सारी चीजें आपके इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, और स्मॉलर एस्पेक्ट पे वो कंपनीज को भी और छोटे बड़े सारे उद्योगों पे वो अफेक्ट डालती हैं। सो वो सब भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नाउ अगर ब्रॉडली हम बात करें, जैसा मैंने कहा भी है, आपसे बताया भी है कि हमें ये एनवायरनमेंट थोड़ा डिटेल में जानने हैं, तो ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पेपर भी आपका आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड you can categorize the political systems in two categories, and what those two categories are, they are democracy and totalitarianism. Two kinds of structure basically exist, political structure भी कह सकते हो इनको, political system भी कह सकते हो। डेमोक्रेसी, as you all know, हम कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। क्यों कहते हैं इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन, कोई बताएगा? एनीवन? व्हाई वी कॉल इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन? Because sir, everyone has right to say whatever they want to say. Everyone has a right to say whatever they want to say, right? बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर आपको अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका एक, आपने मुझे राइट बताया। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पर कि मेजॉरिटी या डेमोक्रेसी से जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक नेशन को बता रहे हैं। यहाँ पर जो सत्ता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो उनका चुनाव किस बेस पे हो रहा है, मेजॉरिटी में जो लोग सरकार को चुन रहे हैं वो सरकार बनती है। सो दैट बेसिकली रेफर्स टू डेमोक्रेसी। चुनाव होते हैं यहाँ पर, ठीक है, चुनाव में आपको अधिकार मिलता है कि आप जिसको चाहें गवर्नमेंट में ला सकते हैं, जिसको चाहे आप नहीं ला सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं कम वोटों से। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी को दर्शा रहा है, ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर देश में चुनाव हो रहे हो। ठीक, इंडिया इज अ काइंड ऑफ नेशन विच वी कॉल एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो डेमोक्रेसी क्या बता रही है? इट रिफर्स टू ऑल पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है, एक्सरसाइज ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, क्योंकि इंडिया मिक्स इकोनॉमी भी है, तो यहाँ पर बहुत से, जैसे गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट चुनने का अधिकार लोगों को दिया गया है, लेकिन जो कहते हैं ना गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में और जो लोग फिट होते हैं, ठीक है, वो उनका अधिकार लोगों के पास नहीं है, उनके लिए बाकी और सिस्टम भी क्रिएट किए गए। जैसे देखा जाए, जैसे नेता, मान लीजिए नेता चुन के आते हैं, नेता चुनने का अधिकार आम जनता का है, लेकिन एक डीएम भी एक जिले को रिप्रेजेंट करता है, तो डीएम चुनने का अधिकार जनता का नहीं है। डीएम अपनी क्वालिफिकेशन से
IAS PCS क्लियर करके वो आते हैं। तो ये अधिकार जनता का नहीं है कि वो कौन डीएम होगा, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ेंगे। तो यही बात आ रही है, एक्सरसाइज ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, या तो डायरेक्टली वो उस चीज में आ रहे हैं क्लियर करके सारी चीज, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। तो ये चीज क्लियर है, डेमोक्रेसी की एक बात हुई। अब दूसरी बात आ रही है टोटलिटेरियनिज्म की। सो व्हाट इज दैट? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी exercises absolute control over all spheres of human life and prohibits opposing political parties। इसमें जनरली क्या होता है कि डेमोक्रेसी की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, या तो किसी पर्सन के द्वारा जो कि बहुत पावरफुल हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों के ऊपर राज करने का, that party has the capability to rule over the people, so that political party may form their government। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म का पार्ट है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो बहुत से देश ऐसे हैं जो टोटलिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट देयर। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म में भी कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, 4 तरीके के फॉर्म हो सकते हैं इस गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी तो एक ही है, जो अभी मैंने बताया कि इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सो डेमोक्रेसी में जनता जो डिसीजन ले रही है, जो जो मेजॉरिटी में जो डिसीजन आ रहा है, दैट रिफर्स टू डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं इसकी टोटलिटेरियनिज्म की। तो इसमें 4 तरीके के हैं। सबसे पहले है कम्युनिस्ट टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, ऐसे जो बिल्कुल कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं शासक जो होते हैं, जो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, दैट एडवोकेट्स अचीविंग सोशलिज्म थ्रू टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। एक आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे, जर्मनी में रहे शासक। ठीक है, हिटलर का आपने नाम सुना। देन अभी अगर नॉर्थ कोरिया में अगर आप बात करें तो किम इज वन ऑफ द डिक्टेटर विच एग्जिस्ट इन दीज डेज। सो बेसिकली सोशलिज्म तो है ही वहां पर, लेकिन उससे ऊपर बढ़कर वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, चाइना वॉज कम्युनिस्ट अर्लियर, बट नाउ डेज they have changed, or somehow they are trying to change from communist to socialism। ठीक है, सोशलिज्म बेसिकली कहता है जो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, यानी कि जो सोसाइटी के वेलफेयर को देखते हुए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं बेसिकली वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी के वेलफेयर से जुड़े हैं, और गवर्नमेंट को ही अधिकार होता है हर तरीके के मेजॉरिटी में जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं कि लोग क्या खाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, ठीक है, उनके घर कैसे होंगे, किस तरीके से उनको सुविधाएं मिलेंगी। ये बेसिकली सोशलिस्ट का पार्ट है। ठीक, और डिक्टेटरशिप एग्जाम्पल मैंने बताई दिया आपको, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, देन आपका ये जर्मनी, ठीक है, रहा चाइना भी समहाउ इस अभी की डेट में आप उसको कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में समझ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पे वो कम्युनिस्ट की तरह एक्ट करता है और कई जगहों पर वो सोशलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। फिर बात आती है थियोक्रेटिक। सेकंड इज थियोक्रेटिक टोटलिटेरियनिज्म। ये क्या, इसमें क्या है, पॉलिटिकल पावर इज मोनोपोलाइज्ड बाय अ पार्टी, ग्रुप और इंडिविजुअल दैट गवर्न्स अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। यहाँ पर जो पार्टी होती है, पहली चीज वो किसी एक धर्म से ताल्लुक रखती है, और उस धर्म की जो प्रीचिंग्स होती हैं, ठीक है, उस धर्म में जो भी ग्रंथ माना गया है उसके जो उसकी जो प्रीचिंग्स हैं वो उसको फॉलो करने वाले होते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। और वो बेसिकली किसी और कानूनी किताब का सहारा नहीं लेते। उस ग्रंथ में जो भी कुछ लिखा होता है, उस किताब में जो भी कुछ लिखा होता है, या उस धर्म की जो मान्यताएं होती हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और अपनी सरकार बनाते हैं।
तो बेसिकली अब जब आप देखेंगे ईरान, सऊदी अरेबिया या दुबई, इनमें आपको जो मिलेंगे वो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलेगी। जैसे आप दुबई में देखते हैं तो दुबई में सम किंग इज देयर, जो नोट पे भी और सिक्कों पे भी जिनका प्रिंस है, जिनका फोटो छपा हुआ होता है। ऐसी अरब में सम शेख इज देयर, ठीक है, वो शेख वहाँ पूरा अरब का रेस्पॉन्सिबल है, वही उनकी सरकार भी वही है, और जो उनके डिसीजंस होते हैं बेसिकली वही वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, वो सरकार वही उन्हीं की चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो धर्म है बेसिकली वो इस्लाम फॉलो करते हैं, और इस्लाम की जो प्रीचिंग्स हैं, जो भी कुरान में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें वहां पे डिट्टो फॉलो की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो उसे कहेंगे हम थियोक्रेटिक टोटलिटेरियनिज्म। सर, यस। ग्रेट ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका काफी मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं गवर्नमेंट के साथ में, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर उनकी ऐसी नहीं है, तो वो उसको हम किस में कंसिडर कर सकते हैं? उसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी आप कहें ना, जैसे पोप साम्राज्य में भी जो माने गए थे क्रिश्चियन, वो उनके देखा करते थे। रोम में भी ये रहा है कि जो उनके पादरी होते थे सबसे बड़े चर्च के, वो देख रेख में रहते थे। बेसिकली इसको हम रखेंगे तो थियोक्रेटिक में, जैसे एग्जाम्पल में मैंने दो यहाँ पे दिए, ईरान, सऊदी अरेबिया, तो ये किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे सऊदी अरब में मैंने बताया इस्लाम को फॉलो करते हैं, और अपनी सरकार भी वहां पर उनकी चल रही है, सारे लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। ऐसी जो आप एग्जाम्पल बता रहे हो ब्रिटेन में या रोम में, वहां पे क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है, और जो भी बाइबल में लिखा हुआ है उसकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। अब होता क्या है कि अब धीरे धीरे बहुत से नेशन, जैसे मैंने बताया ना, कि थोड़ा थोड़ा चेंज भी होते हैं, क्योंकि देखिए हर देश ना तो पूरी तरीके से कभी एक धर्म को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसमें चेंजेस आते हैं समय के अनुसार। ठीक है, कभी ईरान में भी आपने देखा, इराक में भी देखा, जब सद्दाम हुसैन थे, ठीक है, तो वो सद्दाम हुसैन भी आप डिक्टेटरशिप में रख सकते हो, वो कम्युनिस्ट थे। लेकिन अब चूंकि उनकी डेथ के बाद या अमेरिका की उनपे इराक पे हमले के बाद वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोशलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम इज हैपनिंग विद चाइना। तो चाइना कम्युनिस्ट के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन अब वो सोशलिस्ट के तौर पे जाना जाता है। तो ऐसे ही रोम में, या आप ब्रिटेन की जो बात कर रहे हो, तो वो भी कभी पूरी तरीके से चर्च के जो लोग थे वो उसमें स्टेक होल्डर्स थे, गवर्नमेंट उनकी फॉर्म होती थी। लेकिन अब चूंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं, आप अमेरिका में खुद देख रहे हैं देखिए अमेरिका में आप क्या देख रहे हैं, आप जो सरकार है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद बावजूद भी आप देखिए कि कितने इंसिडेंसेस हो रहे हैं, आगजनी हो रही है वहां पे। अभी जो बीच में एक आदमी को शूट आउट कर दिया गया था, ब्लैक पर्सन को, तो उसके लिए कितने लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पे उतर आए, गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे। आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हो रही हैं अभिषेक। ठीक है, यस लोग सर। कोरोना में भी जो गवर्नमेंट की प्रीचिंग्स है, इवन डोनाल्ड ट्रंप डोंट वियर द मास्क, किसी भी उसने, आप देखिए कि कोई भी उसने स्पीच दी है, कहीं पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है। और इवन ही रिपोर्टेड दिस थिंग, ही सजेस्ट दिस थिंग कि आई डोंट वियर मास्क। तो अमेरिकन्स दे आर सेइंग सिटीजंस कि वी हैव फुल फ्रीडम, व्हाई वी वियर मास्क। कोरोना जैसे हाल में ये चीजें हो रही हैं, लोग गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे। तो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा नहीं है कि एक सा रहे, चेंजेस आते हैं। ठीक है, शिफ्ट्स होते हैं, कभी कभी कम्युनिस्ट वाले सोशलिस्ट हो जाते हैं, जो सोशलिस्ट हैं वो डेमोक्रेटिक नेशंस हो रहे हैं आज की डेट में। अगर आप देखें तो कैपिटलिस्ट होने के बावजूद भी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं और लोग चुनाव कर रहे हैं, तो उसको हम डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि सारा कुछ सरकार के हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, वो डेमोक्रेसी को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हर जगह होता है कि जो आपने एग्जाम्पल बताया भी, जो आपने पूछा भी, कि वो थियोक्रेटिक नेशन होने के बावजूद भी ब्रिटेन, वो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं तक उसमें हावी हो रही है या उसके अंदर आ रही है। क्लियर है? यस सर। तो ये मूव होते रहते हैं नेशंस। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज को फॉलो करे। पार्टीज, जैसे कोई पार्टी खत्म हो गई या कोई पार्टी एक्सटिंक्ट हो गई, भाई इंडिया में भी तो कभी आपने देखा ना, राजा हुआ करते थे तो राजाओं का राज होता था, लेकिन राजाओं का कल्चर जैसे जैसे खत्म होता गया, गवर्नमेंट आती गई। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपना राज रखा, उसके बाद पॉलिटिकल, तो बेसिकली क्या है, अगर 100 सालों का इतिहास देखोगे किसी भी देश का, तो वो कभी थियोरेटिक थियोक्रेटिक रहा होगा,
वो कभी सोशलिस्ट रहा होगा, वो कभी कम्युनिस्ट रहा होगा, बट एट प्रेजेंट में वो क्या है, दैट थिंग मैटर्स। ठीक है। फिर बात आ रही है ट्राइबल टोटलिटेरियनिज्म। देखिए नाम में ही लगा है ट्राइबल, यानी ट्राइब्स। तो किसी भी क्षेत्र में जो बेसिकली ट्राइब्स होती हैं, जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, वो बहुतायत में जो होती हैं, यानी जो मेजॉरिटी में होती हैं और जो सबसे पावरफुल होती हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि जिनको सबसे ज्यादा लोग वहां पर फॉलो करते हैं, या जो भाषा, ट्राइब्स में भी भाषा अलग अलग हो जाती है, तो जिस भाषा का सबसे ज्यादा लोग वहां पे उपयोग कर रहे होते हैं, उसमें ही कोई ना कोई लीडर निकल कर आता है। ठीक है, जो उस ट्राइब का मुखिया होता है, जिसे कहते हैं मुखिया है ये, है ना। तो वो ज्यादातर लोगों के द्वारा उस मुखिया को फॉलो किया जाता है। फिर होता क्या है कि उस ट्राइब का वर्चस्व, जिसे हम कहते हैं ना, उसकी पावर या उसकी ऑटोनॉमी बनने लगती है, और बाय वे ऑफ अथॉरिटी दैट ट्राइब और दैट पर्सन हु हैज गेन द पावर फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट। ज्यादातर अफ्रीका के देश हैं, जायरे, केन्या, ठीक है, जिम्बाब्वे, ऐसे देश जो छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां आप देखोगे कि जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो शुरू में वो ट्राइब्स थी, और उन्हीं ट्राइब्स में से जो पावरफुल लोग निकलकर आगे बढ़े, उन्होंने अपनी वहां पर सरकारें बना ली। ठीक है, तो ज्यादातर बेसिकली आपको अफ्रीकन नेशंस में, अफ्रीका में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए वहां पर जो टोटलिटेरियनिज्म फॉलो हो रहा है, जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, दैट इज बेसिकली ट्राइबल। तो एक ही पार्टी वहां पर वो पावर में अपने आ जाती है, और जब तक उस पार्टी में लोग जुड़े रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, वो वहां पर बनी रहती है। ठीक है, बजाय इसके कि दूसरी ट्राइब को वहां पर मौका मिले। फिर है फोर्थ, राइट विंग टोटलिटेरियनिज्म। इसमें क्या, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम इज अलाउड। ठीक है, मिला हुआ है कि आपको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको फ्रीडम एंजॉय करने का अधिकार है, आपको ये चीज मिली हुई है, बट इंडिविजुअल पॉलिटिकल फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन आप राजनीति में इंडिविजुअली क्या दखलंदाजी कर रहे हैं, वो फ्रीडम आपको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, वो बेसिकली ग्रुप्स में, जो बेसिकली वहां पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो पावर में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस या आर्मी या कोई बटालियन, ठीक है, वो अगर पावर में है और उनके डिसीजंस वहां पर देखरेख में है, उनका अगर स्टेक है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, तो वो बेसिकली सत्ता हथियाने का वहां पे काम कर सकती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड इन द बिलीफ दैट इट कुड लीड टू कम्युनिज्म। वो इसलिए किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि जो स्वयं के लिए काम कर रहा है या अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, या सिर्फ अपने आप को देखकर चल रहा है, वो वहां पर सत्ता ना हथिया ले। ठीक है, तो उस अगर वो कर भी लेता है, इन केस कि अगर वो उसकी गवर्नमेंट आ भी जाती है, तब भी जो वहां पर आर्मी है, जो वहां पर स्ट्रक्चर है, जो डिफेंस के पार्टीज हैं, वो ये अधिकार रखती हैं कि उस सरकार को रातों रात वो गिरा सकती है। रातों रात उनके प्रधानमंत्री को भी वो शूट आउट कर सकती हैं, जेल में डाल सकती हैं। पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इसको पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। ठीक है, वहां पर चाहे बेनजीर भुट्टो हो या फिर जितने भी वहां प्रधानमंत्री या जो भी लोग हुए हैं, उनका अक्सर आपने देखा है कि जो आर्मी है वहां की, वो सत्ता पलट कर देती। जो सत्ता पलट बेसिकली क्या होता है कि जब उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री अपने बेनिफिट के लिए देश को आगे रख रहे हैं, या देश के उस पे खेल रहे हैं, ठीक है, या देश के लिए कोई चीज घातक हो सकती है, तो वो हथिया लेती है, यानी कि वो जो सत्ता है बेसिकली वो आर्मी ले लेती है, और जो प्रधानमंत्री भी है उनको या तो जेल हो जाती है या उनके अगेंस्ट में केसेस दायर किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली पाकिस्तान में आप पिछले कई सालों में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा, दैट इज नोन एज राइट विंग टोटलिटेरियनिज्म। हमारे देश में भी है, लेकिन वो राष्ट्रपति, आप देखते हैं ना, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो बेसिकली राष्ट्रपति को अधिकार है, क्योंकि वो सर्वोच्च पर्सन है, सर्वोपरि है पूरे देश में। और अगर राष्ट्रपति कोई बात कह देता है, या राष्ट्रपति अगर ये कह दे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं हो रहा है, जैसे कश्मीर में बहुत सालों तक रहा, राष्ट्रपति शासन भी रहा,
तो वो बेसिकली वो स्टेट जो आपका है वो राष्ट्रपति की देखरेख में जो है वो आर्मी को या उसके सुपुर्द कर दिया जाता है कि जब तक वहां पे पीस बहाली का काम जो आर्मी का है या वहां की जो डिफेंस है उसका रहता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अक्सर ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। तो इंडिया में लेकिन हाँ, सत्ता पलट का अधिकार इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे डेमोक्रेटिकली चुनाव है। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है तो 5 साल से पहले आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बजाय उसके कि गवर्नमेंट में इंटरनली कोई टूट फूट हो जाए या उनके जो प्यादे हैं वो इधर से उधर हो जाए। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, इतना हमने जाना कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कई देशों में, आपने जान लिया कि कितने तरीके के स्ट्रक्चर हैं। और ये सारी चीजें हमें जानना इसलिए जरूरी है कि जब कंपनीज एंटर करती हैं किसी देश में तो वहाँ क्या पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब उसी बेस पे ही आपके रिस्क भी कैलकुलेट होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल रिस्क, सो व्हाट इज दैट रिस्क? इट्स अ टाइप ऑफ रिस्क फेस बाय इन्वेस्टर्स। देखिए, जो भी लोग जो इन्वेस्ट किए बैठे हैं बिजनेस में, ठीक है, कॉर्पोरेशन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट अगर किसी देश में आपको भेज रही है कि अगर आपको रिसर्च करनी है या कोलैबोरेशंस करनी है किसी तरीके के, या आपको सीधे सीधे वहां इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करना है, तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी एट रिस्क इन दैट नेशन। अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान के साथ गवर्नमेंट ने बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखे थे। अफगानिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था आफ्टर द अटैक फ्रॉम अमेरिका, और उसके बाद उसको पूरा बसाने का काम वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सी आर्मी की बटालियन अफगानिस्तान भेज दी गई, कई सालों तक वहां रही, और इसी तरीके से बहुत से जो जो बिजनेस हाउसेज हैं वो वहां पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम, वहां पे जो उत्पाद है और जिंदगी को पटरी पे लाने का काम वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो इस तरीके की चीजों में भी गवर्नमेंट इज एट रिस्क के वो भी पहले जानना चाहते हैं कि वहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा है। It is risk. It is a risk that can be understood and managed with reason, foresight and investment. ये सारी चीजें बेसिकली इस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरी होती हैं कि आप अपने दूरदर्शिता रखें, फोरसाइटनेस रखें, इन्वेस्टमेंट क्या है वो उसको जान लें, उसके एनालिसिस कर लें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं नटशेल में जो पॉलिटिकल रिस्क है वो दो तरीके का होता है, या दो तरीके का, दो वे में आप उसको डिस्कस कर सकते हो, एक तो माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। ठीक है, दो तरीके इसके हो सकते हैं नेचुरली। तो माइक्रो लेवल पे वो है जो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या किसी एक यूनिट को अफेक्ट डाल रहा हो किसी एक देश में, और मैक्रो लेवल का जो होता है वो बेसिकली कहा जाएगा जो टोटलिटी में जो भी है वहां पर जितने भी उस देश की कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, या सारी इंडस्ट्रीज हैं जो भी ऑपरेट कर रही हैं, उन सबको अफेक्ट डाल रहा हो, वो मैक्रो लेवल का पार्ट कहा जाएगा। ये समझ में आ गया माइक्रो मैक्रो लेवल पे? ठीक है, तो सिंगल यूनिट पे जो इफेक्ट डाल रहा है, सिंगल इंडस्ट्री पे जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट का, दैट इज एट द माइक्रो लेवल। एंड जो टोटलिटी में सारी इंडस्ट्रीज पे सफर कर रहा हो, इफेक्ट डाल रहा हो, दैट इज एट द मैक्रो लेवल। इसके कुछ कॉजेज हैं पॉलिटिकल रिस्क के, ठीक है, कि पॉलिटिकल रिस्क क्यों होता है बेसिकली, या इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो लेवल पे भी जो पॉलिटिकल रिस्क है उसकी स्टडी भी आप तब कर पाएंगे जब आप ये जान जाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज टू हैव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन कॉजेज जिसमें जो इंपॉर्टेंट है जिनकी हम बात कर सकते हैं, दे आर लाइक ओपिनियन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। सबसे पहली चीज पॉलिटिकल रिस्क का जो कॉज है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पर, राजनेता लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो ओपिनियंस है, धारणाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो डिफर करती हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको अमेरिका का। डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं वो बिल्कुल अलग है उनसे पहले जो ओबामा सोचते थे उससे। तो अगर देखा जाए, या हिलेरी क्लिंटन या कोई भी जो पार्टीज हैं जो अमेरिका में हैं इस समय या चुनाव में शामिल होती हैं, तो वो सब उनकी जो धारणाएं हैं बेसिकली दे आर डिफरेंट। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिस्क को क्रिएट करती हैं क्योंकि ओपिनियंस अलग अलग होती है पॉलिटिकल लीडर्स की। ओके,
तो वही लिखा है यहाँ पे, पॉलिटिकल लीडर